So after brain, we'll move to the second point, that is a spinal cord, right? Everyone know about the spinal cord. Now it is enclosed within the spinal canal of the vertebral column. So vertebral column में जो middle space है, that space is called as spinal canal, right? Through which the spinal cord passes. It is protected by the meninges, right? Also there are the layers to protect the spinal cord in the vertebrae also. It has the central canal, consists of cerebrospinal fluid. Outer is the white matter and inner is the gray matter. Now you can see here the middle layer, the tough outer layer, spinal nerves. These are the nerves or neurons, we can say. This is white matter which is present outside, and inner side there is a gray matter is present. Understood? Conduction of impulses to and from the brain. So what is the function of this spinal cord? It carries the impulses from the brain and to the brain, towards the brain. ब्रेन को लेके जाते हैं इम्पल्स, और इम्पल्सेस मीन्स क्या है कि अभी एक एक्शन लेना है तो वो ब्रेन को बताएगा, ब्रेन बोलेगा हाँ कर लो, फटाक से वो एक्शन लेगा। तो ये इम्पल्सेस क्या है, आते और जाते रहेंगे। सेंटर्स ऑफ द फाइनल रिफ्लेक्सेस। अब ये जो फंक्शन है इसमें एक क्वेश्चन है, इट इज द सेंटर फॉर द स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, राइट? तो ग्रे और व्हाइट मैटर आपको ध्यान में आ गया यहाँ पे। Spinal, this is the spinal cord which consists of gray and white matter. Now this was all about the central nervous system or neural system, we can say. Now the next is peripheral neural system, which is present in the periphery, right? It includes the cranial nerves and the spinal nerves. अब ये cranial nerves किसे बोलते हैं? जो ब्रेन से निकल रही है और साइड में जा रही है, उनको बोलते हैं cranial nerves. It consists of 12 pair of cranial nerves are there and the spinal nerves. हम जब पढ़ते थे ना इसको, तब उसमें से उनको नाम भी दिए गए थे। आपके सिस्टम में इसके नाम नहीं दिए गए, राइट? तो cranial nerves जो है 12 पेयर्स थी, olfactory, oculomotor, ocular, tracheal, trigeminal, abduction, facial। ये फेस में इधर उधर जहां जहां ये नर्व्स जा रही है वहां वहां पे उसके हिसाब से उनका नंबर है। तो 12 nerves were there and the spinal nerves which are emerging from the spinal cord. स्पाइनल कॉर्ड से निकल के हमारे बाकी के बॉडी पोर्शन में साइड में जो जा रही है, that is the spinal nerve. Nerve fibers of peripheral nervous system are of two types, that is afferent, इसको बोलते हैं sensory fibers, carry impulses from the sense organ to the central nervous system. तो afferent क्या कर रहे हैं, सेंसरी ऑर्गन से, जैसे आंख है, नाक है या फिर स्किन है, यहाँ से इंपल्स लेके जा रहे हैं ब्रेन की तरफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। And efferent, that is a motor fibers, carry impulses from central nervous system to the muscles or glands. Is this clear to all of you? Yes, sir. Okay. So peripheral nervous system is divided into two parts. We have already seen somatic and the autonomic nervous system. Next portion, first one is the somatic neural system or nervous system, we can say. It relays the impulses from the central nervous system to the skeletal muscles. ये तो सीधा सीधा समझ में आया आपको। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, ये क्या कर रहे हैं, इंपल्सेस लेके जा रहे हैं स्केलेटल सिस्टम या मसल्स को। अंडरस्टूड?
through the motor neurons. These are the motor neurons through which the impulses are carrying from brain to the muscles. समझ में आया ये? Now the autonomic neural system. So transmit the impulses from central nervous system to involuntary organ and smooth muscles. Involuntary organs कौन से है? हार्ट है, लंग्स है, उसके बाद में डाइजेस्टिव ट्रैक है, जो भी ऑर्गन्स है, विसरल ऑर्गन्स, विच जो यहाँ पे इम्पल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, राइट? इट इंक्लूड द सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स. तो सिंपैथेटिक नर्व्स किसे बोलते हैं और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स किसे बोलते हैं, ये हम देखेंगे. दैट इज द सिंपैथेटिक सिस्टम. It prepares body to cope with the emergencies, stresses and dangers. It increase heartbeat, breathing rate, constrict arteries and elevate blood pressure. So sympathetic nervous system का काम क्या है? इमरजेंसी कंडीशन में बॉडी को प्रिपेयर करना, स्ट्रेस में, डेंजर्स में. ये हार्ट बीट बढ़ाता है, ब्रीथिंग रेट बढ़ाता है, आर्टरीज को कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके वजह से ब्लड पे प्रेशर आता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. तो दिस इज अ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. ऑटोमिक न्यूरल सिस्टम में देखो यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में. तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इमरजेंसी के लिए काम करते हैं. अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इट रिटर्न्स द बॉडी टू द रेस्टिंग स्टेट after stressful situation and slow down heartbeat, dilates artery and lower the BP. तो sympathetic बोले तो emergency और parasympathetic बोले तो पैरा बोले तो आराम करो. ये बात समझ में आई बेटा? यस सर. फास्ट तो नहीं हो रहा ना? क्योंकि यहाँ पे क्या है, लिखने के लिए आपको टाइम नहीं दिया जा रहा है, आराम से बता रहे हैं, लेकिन ये बीच में गैप नहीं, तो एक के बाद एक कंसेप्ट आपके कान में पड़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट भी लग सकता है आपको ये. तो ये समझ में आया. सेंसरी के बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसे बोलते हैं? Autonomic nervous system. Akshay is there or not? ऋतुजा, ऋतुजा समझा कि नहीं? यस सर. ओके. Parasympathetic is related to emergency or in panic condition, and parasympathetic related to normal conditions. Now, the visceral nervous system is the part of peripheral nervous system. It includes nerves, fibers, ganglion, and plexus, by which the impulse travels from central nervous system to the viscera and from viscera to the central nervous system. Visceral पता है ना आपको किसे बोलते हैं, इसके पहले ही. So these are the presentation of the cranial nerves here. C1, C2, C3, C4, C5. 12 nerves are there, right? These are ventral ramus and these are the phrenic nerves which are present below, right? अब ये गैंग्लिया क्या होते हैं? A ganglion is a nerve cell cluster or a group of nerve cell bodies located in the autonomic nervous system, right? Ganglia क्या होते हैं? It is a bunch of, we can say, nerves or cell bodies located in the autonomic nervous system. That portion is called as ganglion. ये ganglia क्या करता है?
एक्सचेंज करता है इम्पल्सेस का, मीन्स रिफ्लक्सेस का एक्सचेंज करता है। मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, पहले मसल से ब्रेन की तरफ जो इम्पल्स जाता है तो ये पहले गैंग्लियन में जाता है, ये जंक्शन के जैसा काम करता है, और गैंग्लियन से फिर ब्रेन की तरफ जाता है, ब्रेन से फिर से गैंग्लियन में आता है और यहाँ पे एक्सचेंज होके फिर से मसल की तरफ जाता है। तो दिस इज द गैंग्लियन। व्हाट इज नर्व प्लेक्स और प्लेक्सस? A plexus is a branching network of intersecting nerves. It is composed of afferent and efferent fibers that arise from the merging of the anterior rami, you can see here, and the spinal nerves of the blood vessels. Spinal nerves जो है, ये जो rami है ना, ये जो नेटवर्क है न्यूरॉन्स का, that is called as rami. तो ये क्या करता है, नर्व प्लेक्सस ब्रांचिंग नेटवर्क है। These are the intersecting nerves. It is composed of afferent and efferent fibers, जो हमने इसके पहले देखा था, afferent fibers और efferent fibers. So it is emerging from the anterior rami of the spinal nerves and the blood vessels. Nerve plexus किसे बोलते हैं, समझ में आया क्या? बताओ जल्दी। नहीं सर, नहीं समझ में आया? बाकी लोगों को देखो, अभी मैं बताता हूँ। नहीं सर। नहीं समझाना है, कंफ्यूजन, इसलिए मैंने पूछा आपको समझा कि नहीं। अब एफरेंट और इफरेंट ये दो रहते हैं, ये समझ में आया आपको? एफरेंट का क्या काम है, वो लाता है कुछ भी, और इफरेंट क्या करता है, वहां से लेके जाता है ना। तो ब्रांचिंग नेटवर्क है ये। इंटरसेक्टिंग नर्व बोले तो इंटरकनेक्शन, वायर इधर से उधर जोड़ने के बाद जो होता है ना, उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग नर्व्स। इसमें किस से बना है, एफरेंट और इफरेंट। जैसे आपने किडनी में देखा था, एफरेंट आर्टरियोल ब्लड लाता था, है ना, और ब्लड फिल्टर होने के बाद बचा हुआ ब्लड ग्लोमेरुलस से इफरेंट आर्टरियोल लेके जाते थे। ये याद आ रहा क्या आपको? यस नो बोलो। यस। तो वैसे ही यहाँ पे एफरेंट और इफरेंट नर्व फाइबर्स है, बराबर है, और ये ब्रांचिंग फॉर्म कर रहे हैं। और एंटीरियर रैमी क्या है, जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, जो स्पाइनल कॉर्ड का जो ऊपर वाला पोर्शन रहता है, और ब्लड वेसल्स का, ये दोनों पोर्शन क्या करते हैं, ऐसा नेटवर्क फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नर्व प्लेक्सस। Rami is a branch of such as a branch of blood vessels and the nerves. अब समझ में आया? यस सर। नर्व्स और ब्लड वेसल की जो ब्रांच है ना, वो जो नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज नर्व प्लेक्सस। नाउ रिफ्लक्स एक्शन किसे बोलते हैं? ये ऐसी जो एक्शन है, ये आप देख रहे हैं, आप डॉक्टर ने आपके पैर को कभी मारा है क्या, मार के देखा है क्या यहाँ पे घुटने में? It is a rapid, involuntary and unconscious action of the body brought about by central nervous system through the sudden stimulation from receptors. जिसके पैरों में मुंगिया आती, ये वो थोड़ा सा पैरों में जिनको प्रॉब्लम है, ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, उस टाइम पे डॉक्टर ये जो घुटना है ना, यहाँ पे ये रबर वाला हथौड़ा रहता है, उसको मार के देखते हैं, तो क्या हो जाता है, फटाक से पैर ऊपर आता है। यहाँ पे मारने के बाद अगर पैर ऊपर आया तो नर्व सप्लाई प्रॉपर है, और अगर पैर ऊपर नहीं आया तो क्या हो गया, समझ लो यहाँ पे कुछ तो भी प्रॉब्लम है, डिफॉल्ट है। अब यहाँ पे देखो आप, फायर जो है, इसका एग्जांपल दिया है, सडन विड्रॉल ऑफ हैंड व्हेन इट टचेस टू द हॉट ऑब्जेक्ट, टचिंग लिप्स ऑफ ए नर्सिंग बेबी इवोक सकिंग रिफ्लक्स,
मीन्स आप बेबी के सामने अगर आपकी उंगली दे दिया तो वो फटाफट क्या चूसना चालू कर देता है, दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। क्लोजिंग ऑफ आईलिड व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम, आपकी आंखों पर अगर ज्यादा लाइट आ गया तो हम क्या कर लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। नी जर्किंग फिनोमेना, इफ द चाइल्ड सीज और स्मेल्स ए फूड unknown to him, he does not salivate, वो उसके मुंह से लार आती नहीं। बट अगर उसको पता है ऐसा अगर फूड उसने किया, पता चल गया उसको, तो उसको खाने की इच्छा होती है, दैट इज कॉल्ड एज कंडीशनल रिफ्लक्स। ये समझ में आया आपको रिफ्लक्स एक्शन? आपके बुक में अभी ये वाली डायग्राम दिया है, दिस वन, द pathways of impulse and the reflux action is called as reflux arc। ये पूछा गया है बेटा, रिफ्लक्स आर जो है ये पूछा गया है, इसको ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ पे क्या है, रिफ्लक्स आर जो है आपके बुक में भी दिया है। यहाँ पे एक हथौड़ा है रबर का, उसको मारा जाएगा अभी यहाँ पे घुटने पे। यहाँ पे मसल फाइबर्स है, मसल फाइबर से ये लेके जाने वाला जो भी रहता है दैट इज एफरेंट, ये न्यूरॉन्स है, ये न्यूरॉन है, ये लेके जाएगा आपके स्पाइनल कॉर्ड पे सिग्नल, राइट। एंड दिस इज एफरेंट एंड दिस इज अ डॉर्सल रूट गैंग्लियन, जो यहाँ पे नेटवर्क ऑफ ये फॉर्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज गैंग्लियन। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ए रिसेप्टर ऑर्गन इट रिसीव्स अ स्टिमुलस, मींस यहाँ पे मारने के बाद यहाँ पे स्टिमुलस रिसीव होगा। अभी सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन क्या करेंगे, इट ट्रांसमिट द इंपल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन, दैट इज ए घुटना जो है दैट इज द सेंस ऑर्गन, टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड पे आ गया है, राइट। तो यहाँ पे एफरेंट आर्टियोल से ये रिफ्लक्स जो है या स्टिमुलस जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन स्पाइनल कॉर्ड में आ गया, ये फर्स्ट चीज हो गई। अब इंटरमीडिएट कनेक्टर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इट कनेक्ट्स द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। यहाँ पे आप रेड वाला पोर्शन देख सकते हैं, दैट इज द इंटरन्यूरॉन्स। इंटरन्यूरॉन्स क्या करना है अभी ये बताएंगा, राइट। अब मोटर जो है दैट इज इफरेंट, इफेक्टर और एक्साइटर भी बोला जा सकता है इसको। इट कंडक्ट द इंपल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर ऑर्गन। अब पहले यहाँ पे पहले हथौड़ा मारा गया, यहाँ से यहाँ तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंपल्स आया, इंटरमीडिएट न्यूरॉन ने उसको क्या कर दिया, प्रोसेसिंग किया कि इसको क्या करना चाहिए। फिर जो इंपल्स जो है वो गया फिर से इफेक्टर ऑर्गन पे, राइट। उसके बाद में देन इफेक्टर ऑर्गन दैट इज अ मसल और ग्लैंड, इट रिस्पॉन्स टू द इंपल्स। अब इंपल्स के अगेंस्ट में ये रिस्पॉन्स दे रहा, तो देखो यहाँ पे पैर क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स में ऊपर जा रहा है। यहाँ पे हाथ के लिए भी ऐसा ही बताया गया, राइट। ये यहाँ पे फ्लेम पे हाथ रखा गया तो फटाक से ऊपर कर दिया जाए, या तो फिर हम खींच भी सकते हैं। तो ये रिफ्लक्स एक्शन आपको समझ में आया क्या? पूजा, प्रांजलि, रिफ्लक्स किसे बोलते हैं? तो बहुत नॉर्मल है ये, आपने समझ में ही आया होगा। समझ में आया बेटा? यस सर। किसी को नहीं समझा ऐसे फिर से बताना पड़ेगा, ऐसा कुछ है? अरे बोलो जल्दी। निधि, अथर्व, यश, अरे कोई रिफ्लक्स नो दो। सर। समझ में आया कि नहीं? समझा हाँ सर। सर समझा। अपने मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स से सिग्नल जा रहा था, लेकिन
इफेक्टर ऑर्गन से सिग्नल नहीं आ रहा था, इफेक्टर ऑर्गन है आप, समझे? तो ये साइकिल हो गई कंप्लीट, ये समझ में आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेंस ऑर्गन्स। दिस पोर्शन वी विल स्टार्ट टुमारो, ठीक है? होप सो कि कल ओके सर। एक चैप्टर कल फिनिश हो जाएगा आपका, ठीक है? सो बाय फॉर नाउ। ओके, आई विल एंड दिस मीटिंग नाउ।